you get genome, you get books, you get articles, you get dictionaries. These are the different data sets that you can get there as well. So those person or those researchers who have actually submitted their work in the form of books, these are the IDs for those things, and you can actually access it. Let's say you want to search something different only. Let's say I want to search a term which is actually not involved in PubMed. Let's say I want to search ATTA, whatever it is. Okay, and I search it. What Enthrace does is Enthrace actually don't give you an error. Like it won't show you saying that there is an error in your search file or whatever it is. So even ATTA is something which is out there in PubMed. For example, this might be a part of a DNA sequence, and these are the DNA and the IDs for those persons who have submitted the file format whereby Enthrace is actually searched through. So these are the even in this way you can get some results. Whatever it is. Okay, and I print it. So even someone has this as well in PubMed ID. Let's say we change the database. Let's say we change the database to what we can change it to. Let's say we change it to PubChem. PubChem. We can change it to PubChem. Let's say. Now this says that invalid DB name. Why? Because Enthrace doesn't allow you to search through PubChem. So that's why PubChem is not actually an inbuilt database of Enthrace, right? So you can't search through PubChem as well. So this is the value. If you enter a wrong database, this is the error that you will get. That invalid DB name, that is invalid database name. There is no database in Enthrace called as PubChem. So PubChem is not an like an inherent database of Enthrace. So you can't do that. So if you want to search through databases, you can just go and type the default values, and you can get the list of databases as we have seen earlier. What are the databases that Enthrace allows you to search through? So those are the database. You can write the database name here and then search whatever term you want to. Right. So in this way, you can search through a specific database, and it will take some time depending upon your network connectivity because you are directly accessing Enthrace. Okay, so whenever you access Enthrace, be very much clear with first this thing, and you have to enter your email ID. Otherwise, it will show you an error if you don't enter your email ID. Okay, so is this clear with everyone? यस सर मैं बोल रहा था कि जैसे मैं डेटाबेस डिफाइन नहीं करूं, मैं चाहता हूं कि मुझे सब में से मिले, मतलब जैसे एंट्रेस जैसे कि एक सर्च इंजन है, तो मैं बेसिकली चाह रहा हूं कि अगर मैं कुछ भी अगर मैं साइक्लिन सर्च करता हूं तो वो मुझे पबकेम से भी दे और ओमिम से भी दे, जीनोम से भी, पबमेड से भी, प्रोटीन के भी जो डेटाबेस है तो सब अच्छा बस ऐसे ही नॉर्मल यही है क्या? हाँ, क्योंकि उसमें कैसा रहेगा कि पबकेम से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एंथ्रेस में पबकेम तो इनबिल्ट वो है नहीं। हाँ सॉरी सर, वो गलती से निकल गया, वो पबमेड बोल रहा था। हाँ, तो हाँ पबमेड हो गया, जो भी हो गया, तो जस्ट हैव टू डिफाइन द टर्म। जो टर्म हमको सर्च करना है, डेटाबेस मेंशन नहीं करूंगा तो मुझे ओवरऑल सबका दे देगा, ओवरऑल वो पूरा तुमको दिखाएगा उसका। अच्छा बेसिकली बस हम डेटाबेस में डाल दें तो बेसिकली तो ये मतलब फिर वो बहुत ही मतलब वैसे जब कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ कीवर्ड है तभी सर्च करने के काम आएगा ना ये तो। So बेसिकली वो कैसा एरर क्या हो जाएगा उसमें कि एरर तो नहीं होगा, बेसिकली वो टाइम टेकिंग इसलिए हो जाएगा कि लेट्स से तुमने डेटाबेस डिफाइन नहीं किया, ठीक है, कोई टर्म तो वो सब जगह से सर्च करेगा, सब जगह सर्च करेगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा सर्च करने में, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली वो कर सकते हैं। नहीं मैं ये एंट्रेस का ही पूछ रहा था कि इसमें मतलब हमें बायोपाइथन से कैसे इजी, मतलब वो एक्सेस वो आईडी मिल जा रहा है, तो आईडी तो मतलब अगर मैं वहां जाके गूगल करता हूँ कि जैसे मुझे टर्म जो यहाँ लिखना है मैं वहां पे करता हूँ तो मुझे एज इट इज वहां भी मिल जाएगा। हाँ वही मिलेगा, सेम चीज मिलेगा। इट्स जस्ट कि जो चीज वहां पे तुम डायरेक्टली ऑनलाइन यूज करते हो ना, उसी को हम बायोपाइथन से कैसे कर सकते हैं, दिस इज दैट ओनली। अच्छा, बस यही डिफरेंस है। लाइक कभी कभार कैसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल कि जब तुम किसी कंपनी में काम करोगे तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं डॉकिंग अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो डॉकिंग जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऑटोडॉक या कोई भी सॉफ्टवेयर से यूज करते हैं, ठीक है, एंड उसमें क्या होता है कि तुम्हारे डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे कि पहले तुमको ग्रिड बॉक्स करना पड़ेगा डिफाइन, हाइड्रोजन ऐड करोगे, जो भी एक्सेट्रा उसमें जो भी काम होता है, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना कि इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम एक प्रोटीन को डाउनलोड करोगे, उसका एनर्जी मिनिमाइज करोगे एंड देन फिर उसमें सॉफ्टवेयर ऑन करके वो सब डाउनलोड करोगे। तो वहां पे क्या होता है ना कि वो लोग उसी काम को कमांड प्रॉम्प्ट में शिफ्ट कर देते हैं,
लाइक सेट ऑफ कोड्स में शिफ्ट कर लेते हैं कि जो काम तुम सॉफ्टवेयर में करोगे, तो सॉफ्टवेयर में कैसा हो रहा है बेसिकली कि मान लो तुम इधर गए, तुमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से ये सर्च किया, वो किया, वो किया, तो उसमें क्या टाइम टेकिंग है, हर एक क्लिक के साथ टाइम टेक हो रहा है, या हर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में तुम कुछ सर्च कर रहे हो तो टाइम टेकिंग हो रहा है। तो उस सारी चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको सेट ऑफ कोड्स में कन्वर्ट कर दिया कि बस तुम लाइन ऑफ कोड लिख के एंटर मार दो, जितना टाइम तुम्हारा सर्च करने में जा रहा था उतना टाइम यहाँ पे तुम्हारा काम में हो जाएगा। बस बेसिकली वही डिफरेंस है। नहीं तो तो तुमको मतलब सर्च करना है तो वही। ऑनलाइन एंट्रेस में भी जाके सर्च कर लो, कोई डिफरेंस कोई नहीं है, जो वहां पे हो रहा है वही यहाँ पे भी हो रहा है। ओके। बस ये कि तुम लाइन ऑफ कोड्स के साथ यहाँ पे खाली खेल रहे हो, वहां पे डायरेक्टली तुम सर्च कर रहे हो बेसिकली। जैसे वहां पे तुमको फिल्टर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहते हैं हाँ कि हाँ। तुम्हें किस में सर्च करना है, क्या करना है, तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पे तुम अपना खाली वो डाल के सर्च करोगे बेसिकली, बस वही डिफरेंस और कुछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये वो मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स वगैरह बनते हैं उसके काम में आता है, मतलब जैसे आप बता रहे हो कोडिंग के थ्रू करते हैं तो। हाँ, कोडिंग के थ्रू होगा, लेकिन मशीन लर्निंग इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे मशीन लर्निंग इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। ठीक है, मशीन लर्निंग का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। ठीक है, दिस इज जस्ट कि बस खाली बताने के लिए कि मान लो इन केस तुम ऑनलाइन अगर यूज नहीं कर रहे हो, तो तुम ऑफलाइन मतलब इसको किस तरीके से बाय कोडिंग यूज कर सकते हो, वो ओके एक खाली इसमें दिखाया है, दैट्स इट। ओके। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि sometimes you can extract a certain set of data also from your data sets using the ntrace। तो वो data को अगर तुम्हें extract करना है, तो for example let's say कि इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो what you can do is कि let's say मैंने कोई एक variable create कर लिया, let's say data, ठीक है, and then I'll write ntrace, and क्योंकि because I'm fetching the data I'll write efetch, efetch. So this basically allows me to fetch a particular set of data using ntrace from a database server। अब वहां पे भी सेम चीज वही होगा कि पहले तुम्हें डेटाबेस को डिफाइन करना पड़ेगा कि इस डेटाबेस से तुम ले रहे हो। तो लेट्स से मैंने कर दिया न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस सर्वर से मैं इसको वो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको ये डिफाइन कर लिया, एंड देन लेट्स से मेरे को किसी एक ऑर्गेनिज्म का आईडी नंबर मालूम है। जैसे किसी ने मेरे को एक ऑर्गेनिज्म का आईडी नंबर दे दिया, बोला कि इसका डिटेल्स फेच करो यूजिंग बायोपाइथन। सो लेट्स से मेरे पास एक आईडी है EU 490707 लेट्स से, ठीक, एंड आई वांट कि मैं जो इसका डेटा फेच करूंगा वो फास्टा फॉर्मेट में फेच। तो आई विल राइट RET टाइप, दैट मींस जो मेरे को टाइप मिलेगा, जिस टाइप में मेरे को डेटा चाहिए वो फास्टा फॉर्मेट में होगा। सो आई डिफाइन इट एज फास्टा यहाँ पे। तो यहाँ से तो मेरा डेटा फेच हो गया। लेट्स से अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो मैंने एक रिकॉर्ड फाइल क्रिएट कर लिया, रिकॉर्ड करके देन आई विल बी इंपोर्टिंग sec.io.read, क्योंकि मेरे को रीड फॉर्मेट में चाहिए तो मेरे को पहले यहाँ पे sec.io भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो आई विल राइट फ्रॉम bio import sec.io। ठीक है, मैंने डॉट रीड फॉर्मेट में उसको वो कर लिया, एंड देन यहाँ पे पहला जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी माय डेटा, दैट मींस जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर हो रहा है। सो माय डेटा इज गेटिंग स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, सो आई विल कॉल दैट वेरिएबल हियर data, and then I have to define the second argument will be in which format I want my data to be. So it is to be in the FASTA format, and then I can just write print my record file. It will take some time, but then so it gives me this particular output saying कि जिस फाइल को मैंने एक्सेस किया from nucleotide, this is the ID of the file. So the ID is this one, name is this, this is the description of that particular ID number, that is Selenipidium equinoticale Maturus K gene, partial CDS and chloroplast, and number of features are 0, and this is the particular sequence for that file. So in this way you can actually extract the data if you have been provided with the ID। अगर तुम्हें ID पता है तो डेटा को हम इस तरीके से भी एक्सट्रैक्ट यहाँ से डायरेक्टली पाइथन यूज बायोपाइथन यूज करके हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। The only thing you need to keep in focus is the first thing is your email ID जो हम लोग यूज करेंगे। Second thing is कि first you have to start your entries by informing it। So हम लोग पहले e-info को start करेंगे जहाँ पे वो information start हो जाएगा। Third thing is कि अगर हम डेटा fetch कर रहे हैं तो e-fetch हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे ये बोलते हैं सर्च कर रहे हैं तो e-search हो जाएगा, e-fetch हो जाएगा, e-search हो जाएगा। आर्गुमेंट बेसिकली सेम रहेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट विल बी योर डेटाबेस, किस डेटाबेस से हमको वो डेटा कलेक्ट करना है तो वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर हमको किसी का डिटेल्स फेच करना है तो आईडी डिफाइन करना पड़ेगा, टाइप किस फॉर्मेट में वो डिफाइन करना पड़ेगा, एंड अगर हमें रीड ओनली फाइल में चाहिए तो ऑब्वियसली वो सीक्वेंस IO फॉर्मेट को हम लोग इंपोर्ट कर लिया पैकेज, एंड उसको रीड फॉर्मेट में हमने यहाँ से डेटा को स्टोर कर लिया। So इस तरीके से you can fetch a particular data from your FASTA in your from your ntrace file। ठीक है, is this clear?
एंथ्रेस कैसे यूज करना है? Yes, sir. Okay. So now we will be looking at your PDB. So for example, when you go to a PDB website, so PDB basically stands for Protein Data Bank, which is a database जहाँ पे तुम्हारे सब तरीके के proteins के structures होंगे, like crystallographic structures हैं, X-ray structures हैं, जो भी उन्होंने SEM analysis जो भी किया है उन सबके वहाँ पे तुमको structures PDB मिल जाएंगे. Now BioPython also allows you to download those structures directly from PDB. Like in case अगर तुम या तो डायरेक्टली NCBI के सर्वर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, अगर वो नहीं कर रहे हो तो तुम डायरेक्टली बायोपाइथन यूज करके भी अपना वो कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो structures को. So for that what we will be using is directly importing the PDB package. So you will write from bio.pdb import star. Now not only in bioinformatics, बहुत जगह पे तुमको ना इस तरीके के पैकेज मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने स्टार को इंपोर्ट किया है. What this star basically means is कि for example जब हम ये import कर रहे थे bio.seq import seq, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने बायोपाइथन का जो पैकेज है सीक्वेंस, उसमें से सीक्वेंस को इंपोर्ट कर रहे हैं. इसका मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस जो पैकेज है उसमें बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस और हैं, लेकिन हमको सिर्फ सीक्वेंस चाहिए था इसलिए हमने सिर्फ सीक्वेंस को इंपोर्ट किया. ठीक है. लेकिन जब हम स्टार लिखते हैं bio.pdb import star, so what this means is कि PDB पैकेज में जितनी भी डेटा है हमको सब चाहिए. तो अगर मेरे को सारे के सारे डेटा को इंपोर्ट करना है तो मैं सब नहीं लिखूंगा, सिर्फ स्टार लिख दूंगा. मतलब इंडिविजुअली सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस स्टार डाल दो तो PDB पैकेज में जितने भी डेटा सेट्स होंगे ना वो सब के सब इंपोर्ट हो जाएंगे यहाँ पे. फिर तुम्हें कोई एरर शो नहीं होगा. नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि जैसे तुमने स्पेसिफिक पैकेज को इंपोर्ट किया एंड जब तुमने कमांड दिया तो तुम किसी और पैकेज के साथ काम कर रहे हो जो इंपोर्टेड नहीं है, तो तुमको एरर शो हो जाएगा सेम कि ये पैकेज इंपोर्ट हुआ ही नहीं था. तो उस टाइम पे क्या होता है कि बेटर है कि सारे के सारे पैकेज को इंपोर्ट कर दो. तो उसके लिए हम लोग खाली यूज करेंगे स्टार. ठीक है. Now once you have imported this package, the first thing that you want to do is to create a list. So उसके लिए let's say मैंने create कर लिया PDB equals to PDB list. Now ये PDB list basically क्या करता है? PDB list जो होता है ना, इन PDB फाइल जब तुम PDB सर्वर में जाओगे तो PDB जो होता है वो बेसिकली 4 फॉर्मेट में तुम्हारे डेटा को स्टोर करके रख सकता है. एक तो तुम्हारा फॉर्मेट होता है जो हमारा XML फॉर्मेट है जो हम लोग यूजुअली यूज करते ही हैं. एक हो गया जो तुम्हारा प्रोटीन का होता है जो हो गया .pdb फॉर्मेट में. एक हो गया जो हमारा होता है MMCIF बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड MMCIF व्हिच इज मैक्रोमोलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल. मतलब कि जब किसी भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर वो हमको हमेशा एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी से मिलता है, जहाँ पे एक्सरेज डिफ्रैक्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिफ्रैक्ट होंगे, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग कंप्यूटर में नोट करते हैं एंड हमको एक क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर मिलता है. तो वो जो सारे फाइल स्टोर होते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है दैट इज .mmcif फॉर्मेट. Now, कभी कभार क्या होता है कि when you are directly importing from PDB, जब PDB के सर्वर से हम डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि एरर्स बहुत सारे आते हैं, राइट. So BioPython ने क्या किया, when BioPython created this .pdb package, so it also provided the user with one advantage which is known as Quite. वो आगे हम देखेंगे उसका यूज कैसे होता है, जो बेसिकली करता है कि जितने भी एरर्स हैं उन सबको सप्रेस कर देगा एंड तुम्हें कोई एरर शो नहीं होने वाला है, या फिर जो भी पोटेंशियल एरर शो हो सकता है वो उस एरर को खत्म कर देता है, वो आने नहीं देता है. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि यू विल क्रिएट अ एम्प्टी PDB लिस्ट जहाँ पे हमारे बेसिकली जितने भी तरीके के हमारे डेटा फाइल्स होते हैं PDB में वो स्टोर रहेंगे. Second thing is to retrieve your PDB file. So let's say to retrieve what we will do is, क्योंकि मैंने PDB लिस्ट को PDB में स्टोर किया है, so first I will be asking my PDB file, I will be importing my PDB file, so I'll write PDB dot retrieve और retrieve का स्पेलिंग है RTRIEV, retrieve underscore PDB underscore file. So this command will actually retrieve my PDB file. एंड अब कौन सा PDB फाइल करना है तो उसके लिए यू हैव टू नो द PDB ID. So when you will go to PDB सर्वर तो हर एक प्रोटीन का एक PDB ID अपना होता है. So let's say कोई प्रोटीन मेरे पास है, उसका ID है 2F80. So the first argument will be your PDB ID of the file. Second is कि जब तुम उस PDB ID फाइल को इंपोर्ट कर रहे हो तो कहाँ पे उसको इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए तुम्हें डायरेक्टरी उसको बताना पड़ेगा. तो हम लोग लिखेंगे PDIR. What this PDIR basically stands for is protein directory. And this protein directory हमेशा by default it should be
द पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है। तो अभी हमारा करेंटली एक्टिव डायरेक्टरी इज पाइचार्म, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बस एक फुल स्टॉप अगर लिखोगे, सो दैट बेसिकली कंक्लूड्स टुवर्ड्स योर करंट डायरेक्टरी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो मतलब जब हम पीडीबी फाइल को डाउनलोड करेंगे पीडीबी सर्वर से, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली तुम्हारे पाइचार्म फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएगा और कहीं इंस्टॉल नहीं होने वाला, वो डायरेक्टली जाके तुम्हारे पाइचार्म फोल्डर में तुमको दिख जाएगा। तो उसके लिए हम डालेंगे pdir equals to full stop, and then third is your file format, किस फॉर्मेट में हम उसको चाहते हैं। सो लेट्स से वी वांट टू इंस्टॉल और फर्स्ट जो हम डाउनलोड करेंगे फाइल को, इट शुड बी इन mmcif फॉर्मेट। ओके, सो आई राइट mmcif, इस फॉर्मेट में मेरे को फाइल चाहिए। Now ये क्या करेगा, now this command has basically downloaded your file, फाइल को तुमने डाउनलोड कर लिया, डेटा को ले लिया। now उस डेटा को एक्चुअली में व्यू करने के लिए इन योर फोल्डर, उस पूरे डेटा को तुम्हें पार्स करना पड़ेगा एक फाइल में, ताकि वो पूरा का पूरा डेटा जो तुमने नेट से डाउनलोड किया है वो एक प्रॉपर फाइल में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हमें पार्सर को बुलाना पड़ता है। नाउ दिस अगेन, ये नाम कुछ भी हो सकता है, यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ नेम, जस्ट टू बी क्लियर मैं यहाँ पे पार्सर लिख रहा हूँ। नाउ अलग अलग पार्सर है। नाउ पार्सर्स विल बी डिफरेंट व्हेन यू आर यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स। अगर मैं mmcif फॉर्मेट में डाउनलोड मारना चाहता हूँ तो मेरा पार्सर अलग होगा, अगर मैं pdb फॉर्मेट में डाउनलोड करूंगा तो पार्सर मेरा अलग होएगा। तो जब मैं mmcif यूज करूंगा तो पार्सर इज नोन एज mmcif पार्सर। मैंने पार्सर को कॉल किया एंड देन आई विल राइट quit, quite equals to true। What this quite equals to true basically does is कि जब भी हम ये डेटा को पार्स कर रहे हैं तो जो भी एरर आएगा ना, ये सारे एरर्स को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, एरर्स आने नहीं देगा, या जो भी पोटेंशियल एरर्स हो सकते हैं उन सारे एरर्स को ये खत्म कर देता है, तो कोई भी एरर हमको शो नहीं होगा। एंड देन मैं इस पार्स, जो भी डेटा मेरा पार्स हुआ उसको मैं एक डेटा में स्टोर करूंगा। आई विल कॉल द पार्सर फंक्शन यहाँ से, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर हुआ मेरा पार्सर में स्टोर हुआ, मैंने पार्सर को यहाँ पे बुलाया। एंड देन आई विल बी यूजिंग गेट अंडरस्कोर स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर चाहिए उस प्रोटीन का, मैंने यहाँ पे फाइल एक कमांड यूज किया गेट अंडरस्कोर स्ट्रक्चर। सो दिस बेसिकली अलाउज यू टू गेट द स्ट्रक्चर। अब इसके दो आर्गुमेंट्स होंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट विल बी योर प्रोटीन का आईडी, दैट इज 2FAT, जो मेरा प्रोटीन आईडी रहेगा। एंड सेकंड विल बी कि जो मेरा फाइल क्रिएट होगा वो किस नाम से क्रिएट होगा। सो इट विल बी 2FAT एंड उसका फॉर्मेट तुम्हें देना पड़ेगा। सो फॉर्मेट विल बी .cif फॉर्मेट। सो इस फॉर्मेट में मेरा फाइल जो है मेरे डायरेक्टरी में स्टोर हो जाएगा। एंड देन यू विल जस्ट राइट प्रिंट योर डेटा। So once you run it, again थोड़ा टाइम लेगा depending upon your network। तो यहाँ पे you can see it is downloading the PDB structure। So basically अभी वो PDB structure download कर रहा है। It will depend upon your network connectivity। Now it shows that structure ID 2FAT। That means structure जो है वो मेरा डाउनलोड हो गया है। Now if you go to your यहाँ पे PyCharm projects, you can see there is 2FAT.cif, एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया है जो मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया है, राइट। सो इसके बाद तुम इसको ओपन कर सकते हो, अलग अलग तरीके के इसमें पैरामीटर तुम चेक कर सकते हो। So this is one way। अगर तुम्हें PDB फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे mmcif को हटा के राइट PDB, एंड देन वहाँ पे जहाँ पे तुम ये करोगे पार्सर को बुला रहे हो, तो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ mmcif पार्सर इट विल बी अ PDB पार्सर। एंड देन PDB के लिए you have to give another command। That command is known as permissive। Permissive equals to true and quite equals to true। So quite equals to true basically वही कर रहा है कि जितने भी errors हैं उसको suppress कर दे रहा है। Permissive equals to true क्या करता है कि when you are downloading a particular protein file, so protein के अलग अलग confirmations होते हैं, right। So ये क्या करता है, permissive जो है वो हर flexible format में उस structure, protein structure को download करने के लिए यूजर को अलाउ करता है। लाइक इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ओनली। उसके अगर 3-4 मल्टीपल और स्ट्रक्चर्स अगर होंगे तो वो उसको भी डाउनलोड करने के लिए अलाउ कर देगा। लाइक वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा यूजर को कि आपको सिर्फ यही स्ट्रक्चर डाउनलोड करना है। अगर उसके और भी कोई सिनोनिमस स्ट्रक्चर्स हैं जो दूसरे ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, लाइक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी स्ट्रक्चर्स में, तो ये उसको भी डाउनलोड करेगा। सो परमिसिव बेसिकली इज फ्लेक्सिबिलिटी, वो यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर रहा है कि वो आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। एंड देन यहाँ पे बस तुमको नाम फिर चेंज कर देना है। इट वॉन्ट बी इन .cif फॉर्मेट। यहाँ पे लेट से मैं नाम चेंज कर देके उसको कर देता हूँ pdb 2FAT.ent। I'll tell you .ent मैंने क्यों किया यहाँ पे। फर्स्ट लेट्स डाउनलोड द स्ट्रक्चर। सो वंस यू रन इट अगेन, यहाँ पे ये pdb स्ट्रक्चर डाउनलोड करेगा, डाउनलोडिंग द pdb स्ट्रक्चर 2FAT। एंड वंस इट डाउनलोड्स इट, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आईडी आ जाएगा एंड देन यू विल गेट अ ENT फॉर्मेट में यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरा pdb 2FAT.ent फॉर्मेट में एक फाइल स्टोर हो गया। Now the reason I've created it in .ent file is because जितने भी अभी हम डेटा को हैंडल करेंगे, those data will be in the XML format, right?
तो ये जो .ent फाइल होते हैं ना, ये .ent फाइल हमेशा XML फाइल से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि XML फाइल को ही हम लोग हमेशा पार्स करेंगे जहां पे भी हमको करना है। एंड .ent फाइल जो होता है, दोज आर द बेसिकली प्रीकर्सर्स ऑफ XML फाइल, क्योंकि इसमें वो सारे डेटा स्टोर होते हैं एंड देन .ent फाइल को हम लोग XML फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। सो .ent एंड .xml ये दो बेसिकली ऐसे डेटा सेट्स हैं फाइल के जहां पे तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रोटीन के डेटास या न्यूक्लियोटाइड के डेटा स्टोर होते हैं। इसलिए जब तुम पीडीबी फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करोगे तो ऑलवेज डाउनलोड इट इन .ent फॉर्मेट, नहीं तो CIF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो अगर तुम्हें क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर चाहिए। सो लेट्स से कि अगर तुमने किसी प्रोटीन का इसका .cif वो डाउनलोड कर लिया एंड तुम्हारे पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का सॉफ्टवेयर तुम्हारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, तो उस सॉफ्टवेयर में तुम डायरेक्टली CIF फॉर्मेट में फाइल को इंपोर्ट कर लो, तो वहां पे तुम्हें पूरे उसके XRD का जो स्पेक्ट्रम होता है वो मिल जाएगा, क्योंकि .cif में उसके पूरे वो होंगे डेटास होंगे जो XRD रिलेटेड होंगे। सिमिलरली .ent रहेगा जो इसमें तुम्हारे सारे डेटा सेट्स रहेंगे इसके PDB के। नाउ वंस यू हैव दिस .ent फॉर्मेट, you can see जो डेटा इसमें होता है that is almost similar to that of the .pdb format also। मतलब जो .pdb फाइल तुम देखोगे, let me open it with ये। So you see मैंने इसको नोटपैड के साथ ओपन किया, जो .ent मेरा फाइल था, तो you can see here यहाँ पे कुछ दिया, इसने हेडर दिया, इम्यून सिस्टम नाम है इसका, 7 दिसंबर 2005 को इसको अपलोड किया गया था। 2FAT इसका आईडी नंबर है, टाइटल क्या दिया है, एन एंटी यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर रिसेप्टर इसका नाम है। तो दीज आर द डिटेल्स स्टोर्ड इन दैट ENT फाइल। नाउ अगर तुम कोई पीडीबी फाइल को देखोगे तो उसमें भी सेम डेटास होते हैं, वो भी कोई डिफरेंट नहीं होता है। लेट मी जस्ट शो यू अ पीडीबी फाइल आल्सो। जैसे मेरा यहाँ पे ये मेरा पीडीबी फाइल है, ओके, .pdb एक्सटेंशन है, तो इसमें भी तुमको सेम चीज मिलेंगी। जैसे हेडर, उसका नाम दिया सिग्नलिंग प्रोटीन, इस डेट को वो सबमिट किया गया था, ये उसका पीडीबी आईडी है, दिस इज टाइटल, एंड ये सब पूरे उसके जो भी सोर्स है, कहाँ किस किस ऑर्गेनिज्म से आए हैं, एंड एट द एंड ऑफ द फाइल तुम्हें रहेंगे जितने भी उस प्रोटीन में जो कंपाउंड्स है, जो एटम्स हैं, उनके जो वेक्टर है, वेक्टर बेसिकली इज द एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, तो वो सारे तुमको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के यहाँ पे डिटेल तुमको मिल जाएगा। जैसे जब तुम नीचे हो गई तो यहाँ पे दीज आर दी एटम्स, तो 28th पोजीशन पे कौन सा एटम है, देन उसके ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स क्या है। द सेम थिंग .ent फाइल में भी है, सेम थिंग .pdb फाइल में भी होता है। इट्स जस्ट दैट .ent से XML में जाना ज्यादा इजी होता है, इसलिए लोग .ent फॉर्मेट में इसको स्टोर करते हैं। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली उसको तुम डायरेक्टली .pdb फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके ओके ओके। सो आज बेसिकली हम लोग इतना ही करते हैं। टुमारो विल बी आवर फाइनल क्लास, जहाँ पे हम लोग क्योंकि अभी हमने पीडीबी से स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लिया है, नेक्स्ट थिंग विल बी टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर्स में से क्या चेंज हैं, क्या रेसिड्यूज हैं, वो किस तरीके से हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोपाइथन, वो हम देखेंगे। एंड देन वी विल बी लुकिंग एट प्लॉटिंग, कि हम किसी भी डेटा को प्लॉट कैसे कर सकते हैं यूजिंग आवर बायोपाइथन पैकेज। ठीक है, उसके लिए 2-3 पैकेजेस और इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वो मैं कल बताऊंगा तुमको कि वो पैकेजेस इंस्टॉल कैसे करते हैं। अदरवाइज यहाँ से हम लोग अभी यहीं तक रखते हैं, कल का हम लोग फाइनल क्लास देखेंगे जहाँ पे हम प्लॉटिंग करेंगे बेसिकली, और स्ट्रक्चर्स का वो देखेंगे।